Good morning, student. Now again, welcome in your bio class. Today is third lecture of chapter 8. It is human health and disease, where you have read different type of what is the health, and health is affected by genetic disorder, infections, and lifestyle. After that, you have read infectious, non-infectious disease, then common disease in human being, where you have read pathogens, what is pathogens, then you will read some disease, bacterial disease, viral disease, and then protozoa disease, and so on. So in yesterday class we have discussed bacterial disease. There are two bacterial disease we have already discussed in previous period, that was typhoid, pneumonia. So many disease are bacterial disease, but we have taken two examples. First typhoid, second pneumonia. Their pathogens, name of pathogens, symptoms, and how it's cured. Then we have taken the next point, it is viral disease, where we have discussed common cold, dengue fever, or chikungunya. So we will again start from dengue fever. Clear, student? Dengue fever. Dengue fever is a type of viral disease. Its the virus name is called as फ्लैबी virus. क्या नेम है उसका? फ्लैबी वायरस डेंगू फीवर. Understood, student? Dengue is transmitted by the bite of mosquito infected by one of the four dengue's virus stereotype. Clear? चार तरीके के डेंगू वायरसेस हैं. It is febrile illness that affect infants, young children, and adults with the symptoms appearing 3 to 14 days after the infectious bite. There is no vaccine. डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है. और any specific medicine to treat dengue. People who have dengue fever should rest and drink plenty of fluids. कहा जाता है जिसको डेंगू है उसको plenty of fluids लेना है और रेस्ट करना है. सिम्टम्स डेंगू का, it is high fever, severe headache, pain behind the eyes, muscles and joints pain, and rashes. So these are the some symptoms of dengue. Now next one is chikungunya. This is chikungunya. Chikungunya we have already discussed in previous period. Just I will revise it. Chikungunya, the name of the virus of chikungunya is chikungunya virus. ठीक है? It is generally spreaded through bite from a एगिप्टी मॉस्किटो. ठीक है? थर्ड वन, एक ये वेक्टर सोनल डिजीज है, डायरेक्ट नहीं हो रही है, एक वेक्टर लाइक, इसमें मॉस्किटो एक वेक्टर के तरीके से वर्क कर रहा है. द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिवेंशन इज ओवरऑल मॉस्किटो कंट्रोल एंड द अवॉइडनेस ऑफ बाइट एनी इन्फेक्टेड मॉस्किटो. क्या है? मॉस्किटो कंट्रोल करना है. इसको एक ही वो है प्रिवेंशन टू कंट्रोल मॉस्किटो. No specific treatment is known, but medication can be used to reduce symptoms. ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कुछ मेडिकेशंस किया जाता है. सिम्टम्स क्या है? बेसिकली इट इज़ फीवर अप 104 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक फीवर हो सकता है. नॉसिया, सीवियर जॉइंट्स पेन, fatigue, muscle pain, rashes, and headaches. These are the some disease, viral disease, or some symptoms of disease chikungunya. Now we will go next point. It is protozoa disease. अब कौन सा आएगा?
प्रोटोजोआ डिजीज. अभी आप लोगों ने कौन कौन सा रीड किया? बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज. नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोअन डिजीज. प्रोटोजोअन डिजीज में वी विल टेक वन एग्जाम्पल्स. इट इज मलेरिया. क्या है ये? मलेरिया. सो प्रोटोजोआ से होने वाली जो डिजीज़ है, जो हम लोगों को एग्जाम्पल्स में भी रीड करना है एंड एज आपके क्लास 12 के सिलेबस में भी इंक्लूड है. इट इज़ प्रोटोजोअल डिजीज़ में फर्स्ट वन इज़ मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, life cycle of plasmodium. Then you will read ambioic dysenteries और एम्बियोजेनेसिस, जो अमीबा के थ्रू हो रही है. ठीक है. देन वी विल गो नेक्स्ट डिजीज. इट विल बी फंगल डिजीज. सो प्रोटोजोआ डिजीज. सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज लाइक प्रोटोजोआ 2. वी हैव हर्ड अबाउट मलेरिया. प्रोटोजोआ डिजीज में जो फर्स्ट डिजीज आ रही है वो दिस इज कॉल्ड एज मलेरिया. ठीक है. मलेरिया इज़ अ डिजीज़ मैन हैज़ फाइटिंग सिंस मैनी ईयर. बहुत ही पुराने समय से होने वाली डिजीज़ है. प्लाज्मोडियम अ टिनी प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्लाज्मोडियम. द नेम ऑफ द प्लाज्मोडियम which is responsible for it, it is Plasmodium vivax. Plasmodium vivax. Second, Plasmodium malaria. And third one, Plasmodium falciparum. These are the some name of some protozoas which are responsible for malaria. जिसमें क्या है? malignant malaria caused by Plasmodium falciparum. जो Plasmodium falciparum के थ्रू जो हो रहा है, it is so dangerous, so serious. So it's more serious one and can even be fatal. Let us take a glance at the लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. अब ये जो प्लाज्मोडियम फैलिसिफेरम है ये काफ़ी डेंजरस है और बहुत फिटल है. सो इसके लिए क्या क्यों है? वी विल जस्ट डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. क्लियर स्टूडेंट? सो P. falciparum cause the most serious and fatal malignant malaria. The vector of plasmodium is female एनाफ्लेज मॉस्किटो. अभी आप लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज़ भी कई सारी रीड की हुई है, वायरल डिजीज़ भी रीड की है. वायरल डिजीज़ में आपने डेंगू रीड किया हुआ, चिकनगुनिया, और ये भी मॉस्किटो बाइट्स है, लेकिन सब मॉस्किटो डिफरेंट है, अलग उनकी स्पीशीज़ डिफरेंट है. मलेरिया जो इस मॉस्किटो से हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज मलेरिया एनाफ्लेज मॉस्किटो. कौन सा है? फीमेल एनाफ्लेज. द नेम ऑफ मॉस्किटो इज फीमेल Anaphylaxis. Female anaphylaxis. The name of the pathogens which is responsible for malaria. The life cycle of Plasmodium. So basically, life cycle of Plasmodium we will discuss here. Plasmodium enter the human body as a sporozoites infectious form through the bite of infected female anaphylaxis mosquito. हमारी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम के जो प्लाज्मोडियम जो एंटर हो रहा है वो इन्फेक्शियस फॉर्म पर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स. क्लियर स्टूडेंट? स्पोरोजोइट्स इसकी एक इन्फेक्शियस स्टेज है. किसकी? प्लाज्मोडियम की. क्लियर स्टूडेंट? और ये स्पोरोजोइट्स किसके थ्रू एंटर हो रहा है? थ्रू बाइट ऑफ मॉस्किटो टू अ हेल्दी पर्सन. मॉस्किटो जब कोई किसी भी पर्सन को, हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो क्या होता है? स्पोरोजोइट्स उसकी सलाइवा के थ्रू
कहाँ पर चले जाते हैं? बॉडी की लिवर सेल पर, ह्यूमन बॉडी की लिवर सेल पर, ठीक है। तो स्पोरोजोइड्स इज अ इन्फेक्शियस स्टेज। फर्स्ट पॉइंट निकल के क्या आया? स्पोरो, जस्ट अ मिनट, sporozoids is a infectious stage। क्लियर स्टूडेंट? तो और ये स्पोरोजोइड्स कहाँ जा रहे हैं? इट इज गो थ्रू ब्लड इन लिवर सेल, ठीक है। ब्लड से लिवर सेल पर जा रहे हैं, वेयर दे स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब ये पैरासाइट इनिशियली लिवर सेल पर गए एंड लिवर सेल इज अ वेरी सुटेबल प्लेस वेयर दीज पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। और किसको अटैक कर रही हैं? रेड ब्लड सेल्स और RBC। और रेड ब्लड सेल्स आपको पता ही है कि ये क्या है? RBC है। और रेड कलर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ hemoglobin, where red blood cells resulting in their rupture. The rupture of RBC is associated with release of toxic substance. अब जैसे इन्होंने रेड ब्लड सेल्स को अटैक किया, रेड ब्लड सेल्स मैच्योर, ये मल्टीप्लाई होकर मैच्योर होते जाएंगे और रेड ब्लड सेल्स रप्चर होने लगेगी। जैसे ही रेड ब्लड सेल्स रप्चर होगी, इट इज़ रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड एज हेमियोजोन। रेड ब्लड सेल से तो हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन से ही टर्म रिलीज हुआ है हीमोजोइन। हीमोजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज रिलीज बाय द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ स्पोरोजोइड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। जो इधर से अब सिम्टम्स की स्टार्टिंग होती है। मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं, चिलनेस और हाई फीवर, आपको पता होना चाहिए इट इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। क्लियर? और दिस कंडीशन नियर अबाउट स्टेबल 3 to 4 days. When a female anaphylaxis mosquito bite an infected person, these parasite enter a mosquito body. अब क्या हुआ? ये हीमोजोइन रिलीज हो रहा है और बहुत सारे मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे क्या फॉर्म हो गए हैं? सेल्स फॉर्म हो गई हैं। और ये सेल्स फॉर्म फिर से एनाफ्लेज अगेन जब बाइट करती है तो ये अगेन कहाँ पर चले जाते हैं? मॉस्किटो की बॉडी पर, ठीक है। तो पहले ये मॉस्किटो से इन्फेक्टेड फॉर्म पे ह्यूमन बॉडी पर है और ह्यूमन बॉडी से फिर ये मॉस्किटो बाइट करने से फिर मॉस्किटो बॉडी पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल कितने वेक्टर पर कंप्लीट हो रही है? 2 वेक्टर पर। मतलब ह्यूमन बीइंग भी उसको ज़रूरी है और दूसरा मॉस्किटो भी जरूर। तो मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग की बॉडी पर ही ये पूरी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो आई थिंक यहाँ तक कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन व्हेन इट्स एंटर इन मॉस्किटो बॉडी? व्हेन पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी, इट्स अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है स्पोरोजोइड्स का ह्यूमन बॉडी पे, और जो भी सेल्स फॉर्म हुए थे स्पोरोजोइड्स से, मेल और फीमेल सेल्स फॉर्म हुए थे, वो मॉस्किटो पर एंटर होंगे और मॉस्किटो पर एंटर होके फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजोइड्स एंड दे आर, और फिर स्पोरोजोइड्स फॉर्म करेंगे। दे आर स्टोर इन सलाइवरी ग्लैंड। मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स एक प्लेस है वेयर स्पोरोजोइड्स आर स्टोर्ड। Clear? When these mosquito bite a human, these sporozoids are introduced into her body, thereby initiating the event mentions above. अब स्पोरोजोइड्स जैसे ही सलाइवा ग्लैंड्स पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मॉस्किटो सलाइवा ग्लैंड्स पर, और मॉस्किटो फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो स्पोरोजोइड्स अगेन इट विल बी एंटर इन ह्यूमन बॉडी और सेम जो इवेंट है, द इवेंट विच इज मेंशन अबव अगेन रिपीटेड। Clear student? It is interesting to note that the malaria parasite required 2 hosts. अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसमें कोई भी यदि होस्ट नहीं होगा तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और वो फिर इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। तो पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट,
human and mosquito to complete its life cycle, and female anopheles mosquito is a vector. इसको फीमेल मॉस्किटो क्या है? ये फीमेल मॉस्किटो इज अ वैक्टर. वैक्टर किसको कहते हैं? जिसके थ्रू पैथोजेंस ट्रांसमिट होते हैं. द ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प टू ट्रांसमिटेड पैथोजेंस फ्रॉम हेल्थी इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इट इज कॉल्ड एज वैक्टर. जैसे मॉस्किटो के थ्रू प्लाज्मोडियम जो पैथोजेंस है वो ह्यूमन बीइंग से मॉस्किटो, मॉस्किटो से ह्यूमन बीइंग पर ट्रांसमिट हो रहा है. क्लियर? यहाँ तक के किसी को कोई प्रॉब्लम? नाउ वी विल डिस्कस दिस फिगर. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन NCERT, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. So I will give you some important point. You can note it, or you can just read your NCERT also. नोट कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम रिक्वायर बेसिकली 2 होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. आप फिगर से ही समझ में आ रहा है 2 होस्ट है. दिस इज मॉस्किटो होस्ट एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन होस्ट. ह्यूमन एंड मॉस्किटो. Second point, the infected female Anopheles mosquito transfer the infectious form of Plasmodium sporozoites. Now we will see from here. This is salivary glands. Salivary glands. It's sporozoites. We have already read. So sporozoites इसमें already क्या है? Collected है. और sporozoites ये infectious stage है. कैसी stage है ये? Infectious stage. क्लियर? ये स्पोरोजोइट्स फीमेल एनाफ्लेज के बाइट करने पर ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पर चले गए? ब्लड पर चले गए, एंड ब्लड से ये लिवर पर आ गए. ब्लड के थ्रू होते हुए कहाँ पर आ गए? ये लिवर से, ब्लड सर्कुलेशन से लिवर पर आ गए. लिवर इज अ सुटेबल प्लेस वेयर स्पोरोजोइट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? लिवर में मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ. The sporozoites reach the liver cell where they multiply. ये मल्टीप्लाइंग प्लेस है. कहाँ? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई. क्लियर? जिस ऑर्गन पे जो वर्क होता है वहाँ पे वही वर्क होगा, कोई दूसरा वर्क नहीं होगा. तो ये मल्टीप्लाई हो गए. नाउ इट्स अटैक टू RBC. अब ये अटैक किसके ऊपर इन्होंने किया है? मूव हुए और अटैक किसके ऊपर किया? RBC. क्लियर? लिवर सेल से ये RBC पे किया. किसके थ्रू मल्टीप्लाई, किसके थ्रू हो रहा है ये मल्टीप्लिकेशन? बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर स्टूडेंट? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब ग्रोथ हो रही है. किसके थ्रू हो रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी पर जो इसकी लाइफ साइकिल चल रही है इट इज़ थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द रप्चर. अब इसने क्या किया? अटैक किया RBC पर, और RBC पर अटैक करने के बाद एसेक्सुअली उसको RBC को बस्ट किया और रिलीज इनटू द ब्लड पे रिलीज किया. और इसके साथ एक और सब्सटेंस रिलीज होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस. This toxic substance is called as hemozoin. Clear student? ये hemozoin कैसा सब्सटेंस है? टॉक्सिस. क्लियर? it is toxin substance and it's create high fever, चिल एंड शिवरिंग. जो कपकपाहट होती है बॉडी में, ठीक है, फीवर हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोटॉक्सिन. अब यहाँ पे हीमोटॉक्सिन इसने रिलीज किया. नेक्स्ट, दिस पैरासाइट एंटर इन. अब ये जो पैरासाइट है ये यहाँ पर आया. पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स बर्स्टिंग. अब यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स में ये कौन सा आया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसने किया, और इसके बाद फीवर और अदर सिम्टम्स दिए. दिस पैरासाइट इन्फेक्टेड न्यू ब्लड सेल्स. और ये नई ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है. पूरी बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं थ्रू ड्यू टू डिविजन्स ऑफ
स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। और इसके बाद ये फॉर्म करता है गैमेटोसाइट, सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज की शुरुआत किस में हो जाती है? ह्यूमन होस्ट पर। जब इसने पूरे सिम्टम्स दे दिए, आफ्टर दैट इट प्रोड्यूस गैमेटोसाइट्स. These gametocytes again develop in red blood cells and produce two sex cells, female and male. These female and male plasmodium, now it is need to transmit in mosquito body. अब ये जैसे ही इसमें गोनेट्स फॉर्म होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स फॉर्म हो गए, अब यहाँ ह्यूमन बॉडी पर इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसको कहाँ जाना है? मॉस्किटो की बॉडी पर। अगेन मॉस्किटो बाइट इन एनी इन्फेक्टेड पर्सन, these gonads or sex cells, it will be enter in female mosquito. These female mosquito again it will be take gametocytes, take up gametocytes, and these gametocytes collect in blood, ठीक है, ब्लड में है ये. आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस गोइंग ऑन इन फीमेल मॉस्किटो, डेवलपमेंट और मॉस्किटो के इंटेस्टाइन पर चले गए. कहाँ चले गए ये? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन पर, वेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पर स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होते हैं. दीज सलाइवरी ग्लैंड्स आर स्टोरेज ऑफ स्पोरोजॉइट्स. दीज स्पोरोजॉइट्स अगेन देयर इज again need of transfer in human body by mosquito bite. So I think कि 2 बार ये बाइट करके और पूरा एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है मॉस्किटो के थ्रू और ह्यूमन के थ्रू, और इस तरीके से प्लाज्मोडियम अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और इन्फेक्शस प्रोसेस को कैरी ऑन करता है. क्लियर स्टूडेंट? सो द आरबीसी रिलीज द टॉक्सिक सब्सटेंस hemozoin, which is responsible for high fever, chill and shiverings. These parasites enter female anaphylaxis mosquito. Here mosquito, when they bite in infected person, the body of the mosquito, they fertilize, multiply in stomach cell. तो अब यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि मॉस्किटो की बॉडी की क्यों रिक्वायरमेंट है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए और स्पोरोजॉइट्स फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होंगे. यदि ये इसको मॉस्किटो बॉडी नहीं मिलेगी तो ये प्रोसेस यहीं पर चेक हो जाएगी. ठीक है, सो स्टमक पर मल्टीप्लाई होकर और स्पोरोजॉइट्स फॉर्म करता है जो अल्टीमेटली सलाइवरी ग्लैंड्स पर कलेक्ट हो जाता है. तो स्पोरोजॉइट्स इज अ infectious stage. Clear? Now these sporozoites again store in the salivary glands of mosquito till it is again transferred into the human body by mosquito bite. After entering the human body, all the events are repeated. और जो अभी हम प्रोसेस रीड कर रहे हैं, ये प्रोसेस again it will be repeated many times. So this is the life cycle of प्लाज्मोडियम. आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये एक बार आप रीड करके देखोगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस बाय फोन बाय पुटिंग योर क्वेश्चंस. सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल वेयर सेक्सुअल स्टेज, एक बार शॉर्ट में और देख लीजिए. सेक्सुअल स्टेज ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होती है. ठीक है, ये सेक्सुअल स्टेज मॉस्किटो बॉडी में. तो सेक्सुअल स्टेज बेसिकली कंप्लीट हो रही है ह्यूमन बॉडी में. ए सेक्सुअल स्टेज मॉस्किटो पर, और मॉस्किटो का जो सलाइवा है दिस इज स्टोरेज ऑफ स्पोरोजॉइट्स. सो दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू हैव रिटन इन योर नोटबुक और कंप्लीट करोगे. दिस इज कॉल्ड एज plasmodium, life cycle of plasmodium. Clear student? Now next point is amoebic dysentery. It is ambiasis. ठीक है, this is entamoeba histolid. Entamoeba histolytica is a protozoa parasite in the large intestine of human which causes ambiasis, embryonic dysentery. ठीक है, एक और इसमें प्लाज्मोडियम डिजीज दी है. दिस इज एम्ब्रियोनिक डिसेंट्री. द नेम ऑफ द पैथोजन इज एंटामीबा हिस्टोलिका. ठीक है,
it is protozoa, which is mostly present in intestine of human, and it is called causes dysentery. The symptoms of this disease include constipation, abdominal pain, cramps, stool with excess mucus, and blood clots. क्लियर स्टूडेंट? हाउस फ्लाई, इसके लिए एक मैकेनिकल कैरियर क्या है? हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई इज अ एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर. यहाँ पे क्या था? मॉस्किटो. यहाँ पर हाउस फ्लाइज एक्ट अ मैकेनिकल कैरियर और सर्व एज, क्या कर रही है? मैकेनिकल कैरियर and serve to transmitted the parasite from faeces of infected person to food and food products. Clear? Drinking water and food contaminations by the faecal matter are the main source of infection. एक और disease आ रही है. This is fungal disease that we have discussed in next class, next period. Fungal disease, helminthic disease and filariasis or elephantiasis. These are the name of some disease which will be discussed in next class. Thank you, student. Have a nice day.